friends, how are you? I hope you will fine. This is class 11 commerce and we continue the first chapter and the topic is objective of business organizations. It is a very simple topic but it is very important because all the business organizations they work for some objectives. You people also have objectives. You are in class 11th. Your family also have objectives. So in order to achieve the objectives, everyone make a plan. Because without objective there is no plan. Because objective integrate your efforts. Objective give directions to your efforts. So it is very important to do the work while keeping the mind of the objective. So it is very important. So in the business organization there is a various objective and for example in the case of the business organizations there are various departments in the business organizations. In the hierarchy of the business organizations there are various departments like finance department, human resources department, HR department, research and development department. There are so many departments and each departments in every departments have a specific objectives. Different departments have a different objectives so that they can they give directions to their efforts in order to achieve the organizational objective of the organizations. Organizational objectives. So here we discuss the objective of the business organizations. They are written here. Objectives are needed in every area where performance and results affect and survival and prosperity of business. These are marketing standing, innovations, productivity, financials and physical resources, earning profit, managers and performance, managers performance and development, social responsibility, innovations in product. These are all the objective जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अचीव करना चाहता है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशंस उनका बेसिक मोटिव क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का जो है एज ए लेमैन वी नो दैट एज ए लेमैन the every economic activity they have only one motive that is known as the profit earning. But with the passage of time the scenario is totally changed. तो ये समय समय पर जो है मैथडोलॉजी चेंज होता है, समय समय पर जो है बिजनेस का फिलॉसफी चेंज होता है, मैनेजमेंट का फिलॉसफी चेंज होता है. उसी तरह से जो है जो ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का जो अब तक हम लोगों ने जाना कि जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट अर्निंग होता है. बट नाउ ए डे इन द करंट सिनेरियो देयर इज अ कटथ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट. Only making the profit, it is not essential to survive in the competitive environment. उस हिसाब से बहुत सी चीजें हैं. To do your business ethically, it is very important. To follow social responsibility, it is very important. अगर आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं, अगर आप इथिकल बिजनेस नहीं करते हैं, भले ही जो है आपका मार्केट में जो है करोड़ों का संपत्ति है, market share बहुत increase है, but you are not following the social responsibility, we are not doing your business ethically, तो आप मार्केट में, आज के मार्केट में, करंट सिनेरियो में you can't survive. तो उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे. सो जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है इसे दिया हुआ यहाँ पर मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग मीन्स व्हाट इज योर पोजीशंस, व्हाट इज योर बिजनेस पोजीशंस, व्हाट इज योर मार्केट शेयर इन रिलेशंस टू योर कंपटीटर्स. ये ऑब्जेक्टिव जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस ओनर का खुद से उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारा बिजनेस पोजीशन क्या है, हमारे कंपटीटर्स के रिलेशन में जो हम कहाँ स्टैंड हो रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल द मार्केट स्टैंडिंग ऑफ वोडाफोन इन रिलेशन टू द एयरटेल. Increasing the market standing, it is very important. How any company increase their market standing?
how any organization increase their market shares with the help of the various sources, with the help of various, for example, give an innovative idea to your customers, give a after sales services to your consumers, give a good quality products to your consumers. So it is very important to increase your market standing, to increase your market shares in relations to your competitors. This is the advantage, this is the objective of the market standing. Every organization they do. Even अगर हम लोकल मार्केट की बात करते हैं या स्टेट लेवल की मार्केट की बात करते हैं, नेशनल लेवल चाहे डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल लेवल, every persons they want to increase their market shares with the help of introducing new ideas of doing business, with the help of introducing innovative ideas in the production system, introducing some new innovative idea in the packaging. मतलब किसी भी तरीके से जो हमको जो मार्केट शेयर जो हमको इंक्रीज करना है, ठीक है. तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग. नेक्स्ट वन इज जो आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज नोन एज द इनोवेटिव. इन दिस करंट सिनेरियो, इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, आज इस समय में जो है कट थ्रोट कंपटीशन है. अगर आप अपने कस्टमर को जो है, अगर आप सोसाइटी को कुछ इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड नहीं करते, इनोवेटिव गुड्स प्रोवाइड नहीं करते, तो आप मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट. ठीक है. सो इनोवेटिव मीन्स देखिए, इनोवेटिव इट इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ इनोवेटिव. फर्स्ट इज इनोवेशंस इन द प्रोडक्ट एंड इनोवेशन in various skills and activity needed to supply good and services. दोनों में जो है इनोवेशन होना चाहिए. जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पर कि वोडाफोन वीडियोकॉन इंट्रोड्यूस्ड एलईडी टीवी विद इनबिल्ट डीटीएच फैसिलिटी. दिस इज द इनोवेशन इन द प्रोडक्ट. ठीक है. तो in order to increase your market standing, in order to increase your market share, it is very important to give your customer something new. तभी जो है कस्टमर जो है, अपने कस्टमर को आप होल्ड कर पाएंगे और कोई नए कस्टमर को जो आप क्रिएट कर पाएंगे, इफ यू आर गिविंग सम न्यू टू द सोसाइटी, टू द कस्टमर. ठीक है. तो यहाँ पर दिया हुआ इनोवेशंस इन द प्रोडक्ट, मतलब अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस लेकर के आइए. जैसे कि वीडियोकॉन ने किया है. वीडियोकॉन ने क्या किया, एलईडी टीवी को इनबिल्ट किया विद द डीटीएच फैसिलिटी. दिस इज एन इनोवेशन इन द प्रोडक्ट. उसी तरह से जो है इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई गुड एंड सर्विसेज. मतलब कोई जो वेरियस स्किल्स, एक्टिविटी और सप्लाई ऑफ गुड, मतलब कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्सेलेंट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, या फिर जो है हम अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. सपोज बीपीओ आपने सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इट इज अ न्यू इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस. इसमें क्या है, हम अपने नॉन कोर एक्टिविटी को जो हम थर्ड पार्टी को, जो उसको स्पेशलिस्ट है, उसको हम बोलते हैं भाई आप हमारा जो है सिक्योरिटी का काम करिए, आप हमारा जो है साफ सफाई का ख्याल करिए. ठीक है. तो इसमें जो है बिजनेस अपने को इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, वो वैसे स्पेशलिस्ट पर्सन को लगता है जो उस फील्ड के अंदर जो है स्पेशलिस्ट है. इससे क्या होता है, मैनेजमेंट का टाइम बचता है, मैनेजमेंट का जो है रिसोर्सेज बचता है, और जो टाइम बचता है उस टाइम के अंदर जो है मैनेजमेंट अपना जो कोर वर्क करता है. दिस इज एन इनोवेटिव. ठीक है. तो अगर आप जो है इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर लेकर के आते हैं, इनोवेशन इन द वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई गुड सर्विसेज, तो आप जो है मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे. आप जो है अधिक से अधिक जो है अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर पाएंगे, मार्केट स्टैंडिंग आप इंक्रीज कर पाएंगे. ठीक है. सो दिस आर ऑल द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी. व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्टिविटी. देखिए हर एक पॉइंट जो है, ऑल द पॉइंट दे आर इंटर रिलेट विद ईच अदर. सो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट आउट ऑफ इनपुट. मतलब कि आप अपने इनपुट से जो है कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं. ठीक है. तो जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कॉस्ट रिडक्शन की बात आती है, मतलब कि आप जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने आउटपुट का, इनपुट का, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैक्सिमम आउटपुट. एंड हाउ इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ creating a new technology in your production system, including a skillful persons
इन योर प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, आपका मैनेजमेंट स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो है जो भी आप मेन पावर आप जो है हायर कर रहे हो वो जो है नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी आप मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो आप कॉस्ट रिडक्शन कर पाओगे, दैट इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज यू नो द इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि यूज योर स्केर्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो यही चीज है कि रिसोर्सेज स्केर्स है। ठीक है, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, तो उसका अगर हम बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो हम अपने जो है प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, पहले तो अपने कॉस्ट रिडक्शन कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इट मीन नेक्स्ट वन इज फिजिकल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। व्हाट यू मीन बाय फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज? फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स इक्विपमेंट, मशीनरीज, बिल्डिंग्स। ठीक है, ये सब क्या है? आपके फिजिकल रिसोर्सेज है। अगर आपका जो है प्रोडक्शन, अगर आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है, इट रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। अगर आपका जो रिटेलिंग है तो उसमें जो ज्यादा फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर प्रोडक्शन यूनिट है तो आपको एक लार्ज अमाउंट में जो है आपको जो एक एरिया चाहिए अपने प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए, नंबर्स ऑफ मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो है परचेज करना पड़ता है ताकि आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को जो है स्मूदन कर सको। ठीक है, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर इंडिविजुअल आल्सो, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस, फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द बैकबोन, फाइनेंशियल इज द बैकबोन। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, एंड देयर आर वेरियस सोर्सेज इन द फ्रंट ऑफ द बिजनेसमैन टू गेट फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है, बैंक के थ्रू जो हम लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में जो है कोई भी न्यू कंपनी होती है, दे रिक्वायर्ड फाइनेंस टू स्टार्ट द बिजनेस। अगर हमको बिजनेस को जो है डाइवर्सिफाइड करना है या फिर कोई नया ज्वाइंट किसी वेंचर के अंदर हमको जो एंटर करना है, इट रिक्वायर्ड ए फाइनेंस। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था करना कि एज एंड व्हेन द फंड इज रिक्वायर्ड टू द मैनेजर, उसको अवेलेबल कराना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड नॉट ओनली टू मेक अवेलेबल टू द बिजनेस, उसका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई नया कंपनी होता है। ठीक है, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। ठीक है, अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी जो है शेयर इशू करती है मार्केट के अंदर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फंड फ्रॉम द मार्केट। तो वो पैसा जो है किसका है? वो शेयर होल्डर्स का है। शेयर होल्डर्स दे आर ऑन द कंपनी। तो उस पैसे का जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड मैनेजर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर। जिस कंपनी के जो प्रमोटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो पैसा जो उनका पैसा नहीं, वो पैसा किसका है? जिन्होंने उस कंपनी के अंदर जो है विश्वास के साथ लगाया है, शेयर होल्डर्स का पैसा है वो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पैसे का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, तो ये बता रहे हैं यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अर्निंग प्रॉफिट, ऑब्वियसली this is the prime motive of any business organizations, any form of business organizations to earn the profit, but not by hook or by crook. हमको जो भी बिजनेस में जो भी पैसा अर्न करना, जो प्रॉफिट अर्न करना, वो ईमानदारी से करना है। इसका मतलब ये नहीं लिखा मतलब कि हमको जो है ईमानदारी से कोई भी गलत तरीका यूज नहीं करना है हमको प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो जो भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, जो भी हम अपने बिजनेस के अंदर जो भी हमने मशीनरी एम्प्लॉयड किया, जो भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया, जो भी हमने ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयड किया है, उसको रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। और कैसे पॉसिबल है? जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। सपोज मैं बिजनेस के अंदर मैंने लाख रुपए खर्च किया, मैंने जो है जमीन किराए पर लिया, मकान मैंने किराए पर लिया, मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया पैसा, मैंने बैंक से उधार लिया पैसा। ठीक है, तो बैंक हमको इंटरेस्ट देना है। हाउ विल गिव इंटरेस्ट? इफ आई अर्न प्रॉफिट। मुझको अपने किराए के जमीन पर जो है जहां पर मैंने अपना शॉप जो भी स्टैब्लिश किया उसको मुझे रेंट देना है। कहां से मिलेगा? प्रॉफिट से मिलेगा।
मशीनरी जो मैंने परचेज किया उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है हर एक साल, उसको जो है मेंटेनेंस करना है, कहां से होगा? प्रॉफिट के साथ। सो प्रॉफिट जो आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जो डेली ऑपरेशंस जो है उसको जो है वर्कआउट करने के लिए, और आपका जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, सैलरी प्रोवाइड करना, वेजेस प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, रेंट प्रोवाइड करना, टैक्सेस प्रोवाइड करना, आप कहां से करोगे? प्रॉफिट से करोगे। अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो आप कहां से करोगे? ठीक है, तो अपने जो है रेवेन्यू इतना आप जनरेट कर सको कि आप अपने कॉस्ट को भी जो फुलफिल कर सको और कुछ बचा लो, ताकि हमारे जो एक्सपेंसेस है, डेली के एक्सपेंसेस जो उसको मीट आउट कर सके, इसीलिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैनेजेस परफॉर्मेंस एंड द डेवलपमेंट। मैनेजर्स, यू नो व्हाट इज मैनेजर्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजर्स? मैनेजर्स क्या है? मैनेजर सुपरवाइज करता है। मैनेजर्स के अंडर में जो है बहुत से वर्क्स जो है, बहुत से वर्कर्स जो है वर्क करते हैं। मैनेजर्स दे डिलीगेट द अथॉरिटी, दे डिलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ये पहले किसके पास आता है? मैनेजर्स के पास आता है, और मैनेजर्स उसको डिलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। मतलब कि जो भी ऑपरेशन लेवल पे जो भी वर्क हो रहा है, अगर मैं प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहा हूं तो ऑपरेशन लेवल पे जो भी वर्क हो रहा है उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को है। हाउ टू गेट द वर्क्स डन फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, तो पूरा डिपेंड मैनेजर्स के ऊपर है। तो मैनेजर्स का जो है परफॉर्मेंस और उसका डेवलपमेंट का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि पूरी जो आपका जो बेस, जो आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऑपरेशन लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेन वर्क तो ऑपरेशन वर्क पे हो रहा है, बाकी टॉप लेवल मैनेजमेंट दे फॉर्मेटिंग द प्लान एंड प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो ग्राउंड वर्क हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ऑपरेशनल वर्क पे हो रहा है। तो अगर हम मैनेजर्स को टाइम उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं करेंगे, उसके परफॉर्मेंस पर उसको हम रिवार्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मोटिवेट नहीं होगा वो। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशंस टू प्रोवाइड योर मैनेजर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करो, ताकि वो जो है मोटिवेट हो अपने काम करने के लिए और अपने एम्प्लॉय से जो अपने सबऑर्डिनेट्स जो मैक्सिमम जो है एफर्ट ले सके, वर्क ले सके। नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइम मोटिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ ए डे द सिनेरियो इज टोटली चेंज्ड। आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट अर्न करिए, आप मेहनत करो, प्रॉफिट अर्न करिए, लेकिन आपको सोशल इन्वायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको इन्वायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज सपोज कर लो कि आपके लोकेलिटी में कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, दैट बिजनेसमैन इज यूजिंग, उस लोकेलिटी का रिसोर्सेज यूज कर रहा है, वो उस लोकेलिटी का जो है ह्यूमन रिसोर्सेज यूज कर रहा है, फिजिकल रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उस लोकेलिटी का जो है वो एयर इनहेल कर रहा है, वहां के वाटर को यूज कर रहा है वो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वहां के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो अपने इन्वायरमेंट को जो है वो डिस्टर्ब ना करे, उसको पॉल्यूट ना करे। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेसमैन टू कीप योर इन्वायरमेंट हेल्दी, टू कीप योर इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम एनी पोल्यूशन। अगर हम जो है बात करते हैं एम्प्लॉयज की, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स है उसके अंदर, ठीक है, प्रोवाइडिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी टू द नियर बाय पीपल, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने एम्प्लॉयज को जो है हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करना, दिस इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जो हाइजीन वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, दिस इज ऑल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने भी चीजें हैं अगर आप जो फुलफिल नहीं करते हैं तो आप मार्केट में स्टैंड नहीं हो पाएंगे। इट मीन्स दैट इफ यू आर रनिंग द बिजनेस इन एनी लोकेलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहां के एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, आप जो है माल प्रैक्टिसेस ना करें बिजनेस के अंदर, आप अल्टरेशन ना करें, आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है आप जो है कोई फेक इंफॉर्मेशन जो है ना मत पहुंचाएं आप कंज्यूमर के सामने कि आप जो पैसा अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए,
ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है आपको नहीं करना है। आपको अगर आप करते हैं, अगर आप माल प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन करते हैं, अगर आप जो है एयर पोल्यूट करते हैं, वाटर पोल्यूट करते हैं, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर बस केवल आप नहीं है, उस लोकेलिटी के अंदर बस केवल आप रन नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। उससे जो किसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ के लोगों को नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, बिजनेस में जिम्मेदारी बनती है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, हमारे दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करें, एथिकल बिजनेस करें। हर एक कंपनी के अंदर क्या है, एक जो है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हर एक बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। हर एक बिजनेस जो है अपने प्रेमिसेस के अंदर जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है पेस्ट कर रखा है नोटिस बोर्ड पे, मतलब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ताकि हम समझें कि भाई हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जो कोई बिजनेस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता है तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज, सो स्टूडेंट्स, these are all the objective of the business organizations. I think आपको समझ में आया होगा। In the next video we will continue the same. Till then, thank you. Have a good day. Take care.